The fact is that the Aam Aadmi Party has long enjoyed the love and support of the Muslim population, and that AAP could also be the default choice of many people in many of these Muslim-dominated constituencies. Many people talk about the fact that Arvind Kejriwal has done work in the area of health and education. And freebies, to remember, is going to be an important deciding factor. It's going to be no different here for the Muslim population. आपको क्या उम्मीद है सरकार से? हमें उम्मीदें तो बहुत है सरकार से, हमारा काम इस टाइम केजरीवाल ज्यादा कर रहा है। अच्छा। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा मौका मिलेगा? दोबारा भी मिलना चाहिए, तिबारा भी मिलना चाहिए, चौबारा भी मिलना चाहिए। अच्छा। ऐसे कांग्रेस को नहीं वोट करना चाहिए? कांग्रेस भी पार्टी अच्छी है, कांग्रेस कौन को बुरा करिए, कांग्रेस भी अच्छी है। लेकिन आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए क्योंकि उसने बहुत सहूलियतें कर दी है। अब बीजेपी का ये कहना है और कई लोग और भी कहते हैं कि फ्री देने से नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, कि फ्री क्यों बांटे कुछ भी? वो फ्री क्यों है मैम, हमारा ही तो पैसा है, वो भी टैक्स पेयर का मनी है। यस, यह केजरीवाल ने काम करा। अच्छा। लाइटों का काम है और ये पानी का काम है, सफाई भी अस्पतालों में हुई भी। अच्छा। आपका एरिया सुधर गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम किया आपके? हाँ, वो सुधरा हुआ ही था। अब फिलहाल इस टाइम पे ऐसी हो रहा है, अभी कोई तवज्जो नहीं दे रही। जब कूड़ा पड़ा वहाँ पड़ा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई केजरीवाल ने तो काम ठीक करा है पहले। अब ये लोग जो फ्री बाइट जो है, कोई 2500 रुपए बांट रहा है, कोई 2100 रुपए बांट रहा है, ये सब टैक्स पेयर का पैसा होता है। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, ये वोट खरीदने के लिए नहीं होता। कम से कम वो बात ठीक है कि जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं से लेके गरीबों को दिया जाता है, लेकिन गरीब को उसको दिया जाना चाहिए ना जो काम करता हो। क्या ये फ्री भी कल्चर आपको पसंद? बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्री पैसा बांटा जा रहा है और मेरी नजर में बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम किसने किया? वैसे तो शीला दीक्षित ने बहुत काम किया है और उसके बाद केजरीवाल ने भी अपनी जगह सही काम किया है, जैसे फ्री बिजली, पानी और बस फ्री लेडीज के लिए और स्कूल के लिए और स्वास्थ्य के लिए काम अच्छा किया है। सब जगह डेवलपमेंट हो रहे। अरे केजरीवाल जो आज गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाज यहाँ। ये मेरे राइट साइड में जो रास्ता है, ये भी प्लीज जो है खाली कर दीजिए। Thousands have turned up at the rally. The tension in the air is palpable. थोड़ा सा ये खाली कर देंगे हिस्सा। मैं अपने वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि ये दो लोग यहाँ पर हो जाएं। This is Delhi's Shaheen Bagh area, the place that saw protests because of NRC and CAA just 5 years ago. This place has seen fair amount of tensions, even riots. And right now, right over there is a rally that is to be held by the AIMIM chief and Hyderabad MP Asad Uddin Owaisi is now addressing a rally in this area. There's heavy presence of security, police forces and also paramilitary forces, given the reputation that this place has vis-a-vis the kind of tensions it's seen in the past. Delhi mein is baat. AIMIM's entry into the electoral fray marks a bold challenge to the political hegemony of both the AAP and the Congress in Delhi. It could directly benefit the Bharatiya Janata Party since it has the potential to divide the Muslim vote. This is the Shaheen Bagh area of Delhi, and apart from the Okhla and the Muzaffarabad assembly seats, which are just 2 seats of the 70, AIM has chosen to field its candidates only here in 2 seats. Now, the reason obviously is for us to see. This is a strategic move to get the support of the Muslim community. It's important to note that both the candidates from here, Shifa Ur Rahman, who's contesting from Okhla, and Tahir Hussain, contesting from Muzaffarabad, continue to be behind bars. But their party boss, AIMIM chief Asaduddin Owaisi,
is actively campaigning for them in these two assembly seats. The decision by the Aam Aadmi Party to contest the 2025 Delhi Assembly elections without an alliance with the Congress has set the stage for a high-stakes battle that could alter the political dynamics of the city-state. It could throw in some surprises for the Congress too, that is desperate to find lost ground in Delhi. The Congress traditionally has enjoyed the support of the Muslims. Many unhappy with the AAP may wish to give the Congress a chance. But it's unclear the extent of damage it would cause to the Aam Aadmi Party. यहाँ पर किसने ज्यादा काम किया? कांग्रेस। आना किसको चाहिए? कांग्रेस। मैडम दिल्ली में 10 साल राज किया है शीला दीक्षित ने, सॉरी आप देख लीजिए कितने काम किया है दिल्ली के अंदर, अस्पताल बनवाए हैं। और आप यहाँ जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ पे थोड़ा नजदीक में ही है, या जग परवेश हॉस्पिटल है, वो शीला दीक्षित की देन है यहाँ पे, और बहुत विकास किया है। ऐसा कांग्रेस ने ऐसा नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल को मौका दोबारा देना चाहिए? नहीं, हमारा कांग्रेस को इस वक्त देने का है। इस बार कांग्रेस को देना चाहिए हमें लगता है, क्योंकि इस बार यहाँ अपने ओखला में कोई काम ऐसा हुआ नहीं जो हम दोबारा केजरीवाल को वोट दें। कांग्रेस के आने के चांसेस है, क्या लगता है? इस बार चांस है, उम्मीद तो है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अच्छा काम किया? पहले करता था, अब नहीं करता इतना काम, पहले करता था काम। तो अभी क्या कांग्रेस को आना चाहिए? उसको आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जो काम जो यहाँ करते हैं ना, यहाँ तो कांग्रेस ज्यादा करेगी इस बार। AAP has also not shied away from playing the soft Hindutva card in these elections. Lord Ram has been invoked. एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, इतने में रावण आया सोने का हिरन बनके। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरन को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। Meanwhile, BJP has been quick to fire the Chunavi Hindu Bab at the Aam Aadmi Party. पिछले विधानसभा चुनावों से पहले शाहीन बाग उठाया, उत्तर पूर्वी का दंगा करवाया कि किसी तरह से चुनाव जीत जाएं। अब दिल्ली में धार्मिक उन्माद कैसे बिगाड़ा जाए, तो मंदिरों का नाम ले रहे हैं। सारी उम्र तो आपने मंदिरों की चिंता की नहीं, भगवान राम का अनादर किया, अब इनको मंदिरों की याद आ रही है। AAP won all 7 Muslim-dominated seats in 2020, a fact that Congress cannot ignore. Rahul Gandhi hence started his campaign from Seelampur, which is one of Delhi's 7 constituencies where Muslims make up more than 40% of the electorate. Rahul Gandhi! Will the soft Hindutva card being played by Arvind Kejriwal alienate the Muslims? Rahul Gandhi! ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर जो कौम है वो वोट डालता है और ये नेताओं को ऐसी बातें करनी चाहिए। नहीं, धर्म के आधार पे तो कोई वोट नहीं डालता है। किसी भी पार्टी से हमारी कोई अनबन नहीं है। बीजेपी से भी कुछ नहीं, उससे भी क्या अनबन होगी। हमारी बीजेपी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे भी। अरविंद केजरीवाल जो बार बार रामायण की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से ऐसा देखा जा रहा है कि वापस से दिल्ली इलेक्शन में भी हिंदुत्व की बात हो रही है। आपको लगता है कि ये सही है? देखो, ना हिंदू है ना मुसलमान की है, सब एकता है, सब इंसान है। हिंदू मुसलमान के वजह से बीजेपी अपनी सीट खो रही है, क्योंकि यहाँ एकता है, इंसान है, मेन है मतलब रोजगार, विकास। इसके आगे मतलब ये मंदिर मस्जिद का कोई धर्म के आधार पर वोट नहीं डालना। नहीं, धर्म के आधार पे कुछ नहीं ये करना चाहिए। बनाया जा रहा बस लोगों को धर्म के आधार पे। आदमी इंसान को विकास चाहिए, जो भी हो, हिंदू मुस्लिम को विकास ही चाहिए। और क्या, स्कूल हो, एजुकेशन हो, काम पे हो, रोजगार हो, इस चीज पे ध्यान दिया जाए। ये तो बेवकूफ बनाने वाले काम है आपको धर्म के आधार